آج کا کویسچن ہے مسیحوں پر ظلم آخر کیوں؟ عمل کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت، اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا۔ اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کے اعتراف میں پرگندہ ہو گئے۔ سب کو سمجھ آئی کس پر ظلم ہوا؟ بڑا ظلم، گریٹ پرسیکیوشن کس پر ہوئی؟ بولے جی، کس پر سب سے بڑا ظلم ہوا؟ کلیسیا پر۔ اور کلیسیا کے معنی کیا ہیں؟ کلیسیا کے معنی میرے خیال میں آپ سب کو پتہ ہے نا۔ کلیسیا کے معنی ہے یسوع مسیح کو نجات دہندہ ماننے والے اور یسوع مسیح کو قبول کرنے والے نجات یافتہ لوگ، برگزیدہ لوگ، پاک لوگ، چنے ہوئے لوگ، سیپریٹ ون، الگ کیے ہوئے لوگ، یہ ہے کلیسیا۔ جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ مسیح کا بدن ہے اور یسوع مسیح آپ کا سر ہے۔ آپ خدا کے کلام پر ایمان لائے ہیں، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، اس لیے آپ کلیسیا کہلاتے ہیں۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ابھی تک میں نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش نہیں کیا، ابھی تک میں نجات یافتہ نہیں ہوں، تو آپ مسیح کا بدن نہیں ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسیح کا بدن بن جائے۔ ہالےلویا۔ پرسیکیوشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ کون سے الفاظ ہیں؟ جن میں سب سے پہلے ہے ایذا رسانی، لام تان، ستایا جانا، ہراساں کرنا، دکھ دینا، بدسلوکی کرنا اور برا سلوک کرنا۔ ہمیشہ لام تان، بدسلوکی، برا سلوک، ایذا رسانی، دکھ دینا، ہراساں کرنا، یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ خدا کے زندہ ہونے کی گواہی دیں گے، جب یسوع مسیح کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ جس یہ باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ مسیحوں پر یہ ظلم و ستم توڑے جائیں گے، ان میں اور کیا کیا باتیں شامل ہیں؟ نمبر 1 پہ دیکھیں، جب مسیحوں پر ایذا رسانی ہوتی ہے، ظلم ڈھایا جاتا ہے، تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جائیداد ضبط کر لی جاتی ہے، ان کی جائیداد کو ضبط کر لیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے، تشدد کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، پھانسی دی جاتی ہے، ناک میں دم کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ جب آپ بشارت دیتے ہیں۔ یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ یہ تمام جسے کہنا چاہیے ایذا رسانی اس لیے آپ پر ہوگی جب آپ بشارت کا کام کریں گے، جب آپ خوشخبری سنائیں گے، جب آپ یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ زندہ خداوند ہے، اس کی قبر خالی ہے، وہ فاتح خداوند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے شخص کو کلام سنا رہے ہیں جو بالکل خدا سے ناواقف ہے، یا یوں کہ کسی غیر قوم کے بندے کو سنائیں گے تو وہ آپ کو لعن طعن کرے گا، آپ کو برا بھلا کہے گا، یہاں تک کہ آپ کو یا ہو سکتا ہے اس جگہ سے جہاں آپ کلام سنا رہے نکال دیا جائے گا۔ ہمیں نہیں ڈرنا۔ کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ جان سے مار دیں گے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یسوع کے پاس ہم چلے جائیں گے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ اب میں بتانا چاہتی ہوں کس کس کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی، یعنی کلام کی سمجھ آ گئی، تو آئیں پھر زوردار تالیاں اس کو بنانے کے لیے۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ ہمارا مسیحا، ہمارا فدیہ دینے والا، جو ماضی سے واقف ہے، جو حال سے واقف ہے، جو مستقبل سے واقف ہے، جسے آنے والے وقتوں کا پتہ ہے، اس نے کیا کہا ایذا رسانی کے بارے میں؟ میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 20 آیت۔ یہاں یوں لکھا ہے، جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے۔ تو سمجھ آ گئی؟ یعنی یسوع مسیح نے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ لوگ، جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے، جن لوگوں نے مجھ پر لعن طعن کی ہے، جنہوں نے مجھے کہا کہ یہ بدروہوں کے سردار کی وجہ سے بدروہوں کو نکالتا ہے، تو وہ تمہیں بھی ستائے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع
नासरत में आए जिस जहां उसने परवरिश पाई थी, और वहां उनके इबादत खाने में जाकर यीशु मसीह ने यशायाह नबी का सहीफा पढ़ा। उसमें यूं लिखा था कि खुदावंद ने मुझे गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और कुचले को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनाती करूं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, यीशु मसीह एक कलाम सुना रहा था, तो आगे देखें लूका की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 29 आयत में यूं लिखा है, और उठकर उस शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा सके। यानी यीशु मसीह को हर टाइम उनको तकलीफ होती थी कि किसी ना किसी तरीके से यीशु को मार दे, यीशु को खत्म कर दे, यीशु को कत्ल कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। लिखा है कि यीशु वहां से चुपके से निकल गया। यूं समझे कि जो उनको यीशु मसीह को गिराना चाहते थे, पहाड़ की चोटी से जो मार देना चाहते थे, यूं समझे कि उनकी आंखें अंधी होगी, और एक अजीब मौका हुआ कि यीशु वहां से निकल गए। हालेलुया। यीशु वहां से इसलिए निकल गए क्योंकि अभी मसलूबियत का वक्त नहीं आया था। अभी यीशु को बहुत से काम करने थे, अभी यीशु ने मनादी करनी थी, इसलिए खुदा की मर्जी थी कि वो वहां से आराम से निकल गया। एक और वाक्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। और उन्होंने यीशु मसीह को संसार करने के लिए पत्थर उठा लिए, उन्होंने यीशु मसीह को पत्थर मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ फिर अजीब मौका हुआ। यूं समझे कि फिर उनकी आंखें अंधी होगी और यीशु मसीह उनके बीच में से आराम से निकल गया। हालेलुया। अभी मैं आपके सामने ईसा रसानी के 3 अदवार या 3 ज़बानें बयान करूंगी। हाँ जी, आप सुनने के लिए रेडी हैं? बोले जी, आप तैयार हैं? मैंने कहा कि अभी मैं ईसा रसानी के बारे में 3 ज़बानें या 3 अदवार आपके सामने पेश करूंगी। नंबर 1, इब्तदाई कलीसिया और रसूली दौर की ईसा रसानी। नंबर 2, पहली सदी में रोमियों के जुल्म का दौर। नंबर 3, दौरे हासरा में खुशखबरी की, दौरे हासरा में मसीहों की ईसा रसानी। मैंने 3 ज़माने आपको बताए हैं, लेकिन आज मैं एक ही ज़माने पर एक ही वक्त में आपको सुनाऊंगी, और वो है इब्तदाई कलीसिया और रसूली दौर की ईसा रसानी। तो नंबर 1, पतरस और यूहन्ना। कलाम में लिखा है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर हैकल में दुआ के लिए जा रहे थे, तो वहां उन्हें एक जन्म का लंगड़ा मिला, यानी 40 बरस का लंगड़ा मिला। वो भी लंगड़े को भी वो हैकल में लेकर आ रहे थे, और एक दरवाजा, हैकल का दरवाजा जिसे खूबसूरत कहते हैं, वहां वो बैठा देते थे। वो आने जाने वालों से भीख मांगता था। लेकिन जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को देखा, तो उसने पतरस और यूहन्ना से भीख मांगी, और पतरस ने कहा, चांदी सोना तुम्हारे पास है नहीं, जो कुछ है तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उठ खड़ा हो। हालेलुया, हालेलुया। और वो उसी वक्त खड़ा हो गया, और उनके साथ जहां जहां वो कलाम सुनाते थे, जहां जहां वो गवाही देते थे, उनके साथ रहा। लेकिन यहूदियों को आग लग गई, वो बर्दाश्त ना कर सके, इसलिए उन्होंने उनको पकड़कर जेल में बंद किया। कमाल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 41 आयत। मैंने पहले बताया कि जब ईसा रसानी होती थी, जब उनको पकड़ते थे, मारते थे, तो वो बुड़बुड़ाते नहीं थे, वो दांत नहीं पीसते थे, बल्कि शुक्रगुजारी करते थे और ज्यादा खुशी से भर जाते थे। और यहाँ यूं लिखा है, बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम इस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। हालेलुया। यहाँ पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा, जब उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, तो वो कहते हैं, खुश होकर ये कह रहे हैं कि खुदा का शुक्र हो कि हम उसके नाम की खातिर बेइज्जत तो हुए। और पौलुस और सिलास भी
वो जेल खाना में जब हमें बंद किया गया, वो भी हम तो स्ताइश के गीत गा रहे हैं, वो गुड़ नहीं रहे, बल्कि जब जब उन्हें आसानी दी जाती थी, मारा जाता था, पीटा जाता था, वो और ज्यादा खुशी से खुदा की हमद करते थे। हालेलुया। आए मेरे साथ एक हवाला देखें, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, बोले कि क्या लिखा है, सब बोले, खुशी मनाना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कि वो गाली के बदले गाली देते थे, ये नहीं कि अगर किसी ने उनको 2 मुक्के मारे तो वो 4 मुक्के मारते थे, बल्कि खुशी से, शादमानी से इसको बर्दाश्त करते थे। कहते थे कि कोई बात नहीं, अगर खुदा के नाम से बेइज्जत होना पड़ा है, अगर खुदा के नाम से जेल जाना पड़ा है, तो हम हाजिर हैं, हम ये सहेंगे। अब मैं आपके सामने दूसरा पॉइंट बयान करूंगी। रेडी है? हाँ जी, तैयार है? आइए फिर जोरदार तालियां खुदा के सलाम के लिए। दूसरा पॉइंट जो है वो आपको मिलेगा अमाल की किताब के 6 और 7वें बाब में। स्टेफनस को संसार कर दिया गया और ये कलीसिया का पहला शहीद था। संसार करने का मतलब है कि उसको पत्थर मारे। अब पत्थर क्यों मारेंगे? बोले, मैंने पहले भी बताया था कि ये एज़ारसानियां क्यों हो रही है। सब बोले, मैंने कहा था ये बदसलूकी, ये लान तान, ये एज़ारसानियां, ये हरासा करना, ये डराना, ये नाक में दम करना और खौफजदा करना, ये क्यों है? कोई बोलेगा क्यों है? अंजील की मनादी करने से, खुशखबरी सुनाने से, बाइबल का कलाम सुनाने से, गवाही देने की वजह से, और ऐसा ही स्टिफनस के साथ हुआ। लिखा है कि स्टिफनस जो था वो फजल और कुव्वत से भरा हुआ खुदा के कलाम को सुनाता था। और जब वो खुदा के कलाम को सुना रहा था तो कलाम में लिखा है कि बहुत से सिकंदरिया के लोग जो आसिया और किलिकिया से आए थे, वो उससे बहस करते थे कि क्यों कलाम सुनाता है, इसका क्या मतलब है, यीशु मसीह के बारे में बयान कर रहे हैं। यानी इस किस्म की आपने भी देखा होगा कि अक्सर लोग पास्टर से बहस करते हैं, तो ये भी स्टिफनस से बहस करते थे। और जब बहस करते थे तो कलाम में लिखा है कि स्टिफनस जो था वो कुव्वत और दनाई और दलेरी के साथ जिस तरीके से उनसे बात करता था, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने चंद आदमियों को बुलाकर स्टिफनस के खिलाफ करवाया और उन्हें कहा कि ये मूसा और खुदा के बारे में बोलता है, ये शरीयत के खिलाफ बोलता है, ये मूसा और खुदा के खिलाफ बातचीत करता है, ये शरीयत के खिलाफ बोलता है। और यूं हुआ कि जब उन्होंने सुना, उन्होंने जब लोगों को उभारा, तो उन्होंने स्टिफनस को पकड़ लिया और उसे संसार करने लगे। लेकिन सुन ले एक और बात, जब स्टिफनस को संसार कर रहे थे, लेकिन फिर भी स्टिफनस कलाम सुनाता रहा, फिर भी स्टिफनस गवाही देता रहा, फिर भी स्टिफनस बशारत का काम करता रहा। और उसने कहा कि ऐ भाइयों, ऐ मुझे मारने वालों, ऐ संसार करने वालों, मैं तुम्हें खबर देना चाहता हूँ कि खुदावंद अपने फजल के साथ अब्राहम को कसदियों के मुल्क से लेकर आया। उसके औलाद भी ना थी, फिर भी खुदा ने वादा किया था कि मैं तुझे आसमान के सितारों और जमीन के जर्रों के बराबर औलाद दूंगा। हालांकि उसके पास औलाद नहीं थी, फिर जब वक्त आया तो खुदा ने उसको इसहाक दिया। इसहाक से 12 बेटे चले। चलते चलते उसने कहा कि उन सब को उसने मुल्क कनान में बसाया। ऐ गर्दन कशो, ऐ दिल के और कान के नामख्तूनो, तुमने नबियों को कत्ल किया जिस तरीके से तुम्हारे बाप दादा ने नबियों को कत्ल किया, तुम भी उसी तरीके से अमल करते हो। तुम रूह कुदस के खिलाफ बोलते हो। इस तरीके से आखिर तक स्टिफनस संसार होता रहा, कलाम सुनाता रहा। उसने अपने बदन की परवाह न की। उसे पता था कि ये बदन, ये काकी है, ये बेस्वाद है, लेकिन मेरी रूह खुदा के साथ है। हालेलुया। अब सुनिए, हमारी किताब उसका 7वां बाब और उसकी 55 से लेके 56 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ यूं लिखा है, मगर उसने रूह कुदस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा के जलाल
और यीशु मसीह को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं घबराया, वो नहीं घबराया। मैं क्या बयान कर रही हूँ? शागिर्दों पर जो एज़ा रसानी आई, परसिक्यूशन जो आई है, जो इन्हें परसिक्यूट किया गया है, जो इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो नहीं डरे, वो नहीं घबराए। और फिर लिखा है कि जब उन्होंने स्तिफनस को संसार किया तो उनके हौसले बढ़ गए। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम है, मसीहों को यानी शागिर्दों को तकलीफ देने के लिए, यीशु मसीह से दूर करने के लिए बड़ा अच्छा काम है। तो वो इस तरीके से करते रहे। लिखा है स्तिफनस की संसारी के बाद बहुत बड़ा जुल्म हुआ। बोले जी क्या हुआ? बहुत बड़ा जुल्म हुआ। अब आप क्या समझे जुल्म किस तरीके का हुआ होगा? बोले जी किस तरीके का जुल्म हुआ होगा? जब लोगों को मारा जाता है मसीह का नाम लेने से, तो किस किस्म का जुल्म होता होगा? या यूं के शागिर्दों पर किस किस्म का जुल्म किया गया उस वक्त? कोई नहीं बताएगा। जुल्म इस तरीके से आप इमेजिन करें, आप अपने ज़हन में सोचें कि जब शागिर्दों पर जुल्म उठाए जा रहे थे तो जुल्म इस तरीके का हुआ। हो सकता है कि उनके घरों को जब्त कर लिया गया हो सकता है उनकी जायदाद पे कब्जा कर लिया हो सकता है उनकी लेडीज को, उनकी बहनों को, उनकी बेटियों को बेहुरमत किया गया हो, उनकी बेइज्जती की गई हो, उनको मारा गया हो, उनको घसीट के नकारा गया हो, क्योंकि एज़ा रसानी तो वो दे रहे थे। इस किस्म का बड़ा जुल्म हुआ। लेकिन एक और बात बताना चाहती हूँ, इससे पहले मैं हवाला पढ़ूं। ये जुल्म जो हुआ है ये शागिर्दों और कलीसिया पर हुआ है। मेरे साथ निकाले अमाल की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत। शाऊल उसके कत्ल पर राजी था और उस दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बर्पा हुआ। और रसूलों के सिवा, गौर से सुनिए प्लीज, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की इतराफ में परगंदा हो गए, स्कैटर्ड हो गए, बिखर गए, फैल गए। कौन? बोले जी कौन? रसूलों के। आप इसका मतलब नहीं सुन रहे, प्लीज गौर से सुने। रसूलों के सिवा सब कलीसिया के लोग परगंदा हो गए, बिखर गए, तितर हो गए, स्कैटर्ड हो गए, फैल गए यहूदिया और सामरिया की तरफ फैल गए। अब फैलने से मतलब ये नहीं कि उन्होंने कहा कि ओहो हमारे को तो बड़ा जुल्म हुआ, हमारे घर बार पर कब्जा हो गया, हमें उन्होंने घर यानी जिसे कहना चाहिए जिला वतन कर दिया, हमें निकाल दिया, हमें फांसी देना चाहते हैं, कत्ल वारत करना चाहते हैं और वो निकल गए। ऐसा नहीं, बल्कि वो जहां गए खुशखबरी सुनाते रहे। सुने, रसूलों पर और कलीसिया पर जुल्म ढाया गया, यानी बड़ा जुल्म। तो उन्होंने कोई जुलूस नहीं निकाला। बोले जी, उन्होंने कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई इhtजाज नहीं किया, कोई मुकदमाबाजी नहीं की, कोई पथराव नहीं किया, और ना ही यहूदियों और रोमियों की इमलाक को नजरे आतिश किया। कुछ भी नहीं किया, खामोशी से निकल गए। कौन निकल गए? शागिर्द नहीं, कलीसिया के लोग। अब जब वो निकले हैं तो उनका एम क्या था, उनका मकसद क्या था? वो भूल गए अपनी जायदाद को, वो भूल गए अपनी बेइज्जती को, वो भूल गए सब कुछ जो उनके साथ जुल्म बर्पा किया गया था, जो उनके पर जुल्म ढाया गया। उन सब बातों को भूलकर उन्हें पता था कि कलाम में लिखा है कि खुदा सब कुछ मुहैया करेगा। यहोवा यरी सब कुछ, अगर आज ये जायदाद चली गई है तो उससे बढ़कर डबल देगा। लेकिन उनके दिल में एक ही काम था, और वो काम था कि इरशाद आज़म की तकमील करनी है। हालेलुया, हालेलुया। वो जुल्म सहते हुए, वो परेशानियों से गुजरते हुए शादमानी के साथ निकलते गए, और एक ही एम था, एक ही मकसद था कि हमने इरशाद आज़म को पूरा करना है। आइए देखें कलाम में क्या लिखा है। इमाम की किताब उसका पहला बाब
اور اس کی 8ویں آیت. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. تو ان کے دل میں تھا کہ ہمیں قوت کا لباس مل چکا ہے, ہم نے کلام سنانا ہے. انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کس طریقے سے ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں, اس لیے وہ یہودیہ اور سامریہ تک پہنچ گئے اور خدا کا کلام سناتے چلے گئے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. کلیسیا کو تو جہاں جگہ ملی, یعنی یہودیہ میں, سامریہ میں, جدھر جدھر وہ گئے وہ کلام سناتے گئے. جہاں جہاں گئے خدا کے نام کی گواہی دیتے رہے, خدا کے کام بتاتے رہے, خدا کے عجیب نشان بتاتے رہے, خدا ان کے معجزات کو بتاتے رہے, سارا کچھ وہ کرتے رہے. پیچھے کون تھے؟ میں نے پیچھے جو حوالہ پڑھا, میں نے کہا کہ سوائے رسولوں کے سب لوگ پرگندہ ہو گئے, تتر بتر ہو گئے, چلے گئے. اب رسول پیچھے باقی ہیں. اب جہاں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے تو کیا رسول بچیں گے؟ بولے جی, کیا رسول بچیں گے؟ کیا شاگرد بچیں گے؟ وہ تو ہر ایک پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. تو آئے میرے ساتھ دیکھیں کہ ان پر کیا ظلم ڈھائے گئے. اعمال کی کتاب اس کے 12ویں باب میں لکھا ہے کہ یعقوب کا سر قلم کر دیا گیا. ہاللیلویا. کس لیے قلم کر دیا گیا؟ کلام سنانے کی وجہ سے, بشارت دینے کی وجہ سے. اس کے بعد اعمال پھر 12واں باب لکھا ہے کہ پترس کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد اسے رہا بھی کر دیا. پھر اعمال کی کتاب اس کے 14ویں باب میں یوں لکھا ہے کہ لسترا میں, شہر کا نام ہے, لسترا میں پالوس کو سنگسار کر دیا گیا. میں نے پیچھے بتایا کہ اس کی لاش کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور ادھوا سمجھ کر چھوڑ گئے, اور وہ دوسرے دن میں تازہ دم ہو کر دربے میں چلا گیا. اور یہاں لکھا ہے کہ پالوس کو سنسار کر دیا گیا اس کے پہلے مشنری سفر کے دوران. ہاللیلویا. تیسرا بتانا چاہتی ہوں, اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب میں لکھا ہے کیسریا فلپی میں پالوس اور سلاس کو دوسرے مشنری سفر میں مارا گیا, جیل میں بند کر دیا گیا, کوڑے مارے گئے, بینت لگے, پاؤں جسے کہنا چاہیے پاؤں جو تھے وہ بھی کاٹ میں ٹھوک دیے گئے. ہاللیلویا. ان کی دلیری کے لیے, ان کے حوصلوں کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے زوردار تالیاں. بشارت کا کام سر انجام دینے کے لیے 12 شاگردوں پر جو تکلیفیں آئی, جو ایزا رسانی ہوئی, جس طریقے سے انہیں لام تان کیا, کس طریقے سے انہوں نے برداشت کیا, لیکن اپنا جسے کہتے ہیں نا سر ڈال دے, وہ نہیں ڈرے. وہ انجیل کی بشارت کرتے رہے, منادی کرتے رہے کہ پترس کو روم میں مصلوب کر دیا گیا. پھر اس کے بعد یعقوب, میں نے پہلے بھی بتایا, یروشلم میں یعقوب کا سر قلم کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ہے یوحنا کو پتمس کے جزیرے میں قید اور تیل کے جلتے کڑا میں ڈال دیا گیا. اندریاس موجودہ ترکی میں شہید ہوا. یہ ہے 12 رسولوں کے بارے میں, شاگردوں کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ بشارت کے بعد, منادی کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. فلپس شہید ہوا, اور لاوی افریقہ میں شہید ہوئے. توما جو تھا وہ ہندوستان میں شہید ہوا. سنتے جائے کہاں کہاں انہوں نے منادی کی اور کہاں کہاں انہیں اذیت دے کر مار دیا گیا, ہم کہتے ہیں شہید کر دیا گیا. حلفئی کا بیٹا یعقوب سنسار کر دیا گیا, پتھر مار مار کے مار دیا گیا. میتھیا 12واں رسول شہید ہوا. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیوں شہید ہوئے؟ کیوں شہید ہوئے؟ بولے بولے زور سے بولے, کیوں شہید کر دیے گئے؟ کیوں مار دیے گئے؟ بشارت کا کام انجام دینے کے لیے, خوشخبری سنانے کے لیے. وہ کیوں شہید ہو رہے تھے؟ وہ کیوں یہ ایسا رسانیاں برداشت کر رہے تھے؟ ان کے نتائج کیا تھے؟ ان کو پتا تھا کہ ہم جلال میں داخل ہوں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ 12 شاگردوں نے, میں نے کہا کلیسیا کے علاوہ یہ جو 12 شاگردوں نے ایسا رسانی سے ہے, کسی کو مار دیا گیا, کسی کا سر کاٹ دیا گیا, کسی کو پھانسی دے دیا, کسی کو جلتے تیل کے کڑا میں ڈال دیا گیا, اور کسی کو کوڑے مارے گئے. اور یہ انہیں کیوں پتا تھا؟ کہ انہیں پتا تھا کہ جسم, یہ ہمارا جسم جو ہے یہ تو مٹ کپ جائے گا, لیکن
बताया गया कि हम खुदा के जलाल को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो शुक्रगुजारी करते थे और शादमानी करते थे। वो शादमानी की रूह को लिए हुए थे। उनकी रूह जो थी वो शादमान थी, खुश थी कि हम खुदा के लिए बेइज्जत हो रहे हैं। अगर ये जिस्म खत्म होता है, अगर ये जिस्म जो गलने सड़ने वाला है, इसको अगर वो जियत दे रहे हैं तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम खुदा के जलाल में दाखिल होंगे। हालेलुया। आए मेरे साथ रोमियो में से 8 बाब और उसकी 18वीं आयत देखें। क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। ये तमाम शागिर्द जानते थे कि ये दुनिया के दुख दर्द, ये दुनिया की तकलीफें, ये दुनिया की एहसानी, ये दुनिया की बदसलूकी, ये दुनिया का बुरा सलूक जितना मर्जी वो कर दे, चाहे साथ में है वो तन से जुदा कर दे, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि इसके बदले में हम उस जलाल में दाखिल होने वाले हैं जो इन तकलीफों के मुकाबले में बोले बहुत ज्यादा है। यानी ये तकलीफें उस जलाल के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बड़े जलाल को देख रहे थे। जैसे स्टीफनस कहता है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के दाहिने हाथ देख रहा हूँ। उसने अपनी आंखें खुदा की तरफ गाड़ी हुई थी, उसने अपनी रूह को खुदा की रूह के साथ मिलाया हुआ था, वो देख रहा था। स्टीफनस को संसार किया जा रहा था, स्टीफनस को मारा जा रहा था, स्टीफनस के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे, लेकिन वो यही देख रहा था कि खुदा के जलाल को देख रहा था, और वो देख रहा था कि आसमान खुला हुआ है और यीशु मसीह खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, और उसे वो कह रहा है वेलकम स्टीफनस, आजा स्टीफनस, वेलकम स्टीफनस, और वो इसीलिए शादमानी के साथ शहीद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं याद करना चाहती हूँ कि ये एज़ारसानियां वो खुशी से इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि वो समझते थे कि हम मुबारक लोग हैं। अक्सर मैं आपको कहती हूँ जो आप खुदा के चरणों में बैठे हैं वो मुबारक लोग हैं, आप रास्तबाज लोग हैं। आप खुदा के लिए अपने वक्त की कुर्बानी देकर खुदा को सिजदा करने आते हैं तो आप मुबारक लोग हैं। इसी तरीके से वो भी समझते थे कि अगर ये तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं तो हम मुबारक लोग हैं, हम उसके साथ शामिल होंगे, हम जलाल में शामिल होंगे, हम उसके हम प्याला हम नवाला होंगे, हम उस मराश में शामिल होंगे, हम उस बादशाही में शामिल होंगे जहां बादशाह का बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक हवाला देखें मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 5वां बाब 10 से 12 आयत। यहाँ यूं लिखा है, मुबारक है वो जो राष्ट्रवादी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक हो हुए खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है। हालेलुया, हालेलुया। ये एज़ारसानी, ये लान तान, ये बुरा सलूक, ये हरासा करना, ये कत्ल करना, जितनी तकलीफें थी मैंने शागिर्दों और रसूलों के बारे में बयान किया। हमारे लिए क्या, हमारे लिए क्या सबक है? बेशक आपके लिए भी मैंने कहा कि अगर दोबारा मौका मिला तो हम दौरे हाजरा की कलीसिया के एज़ारसानी के बारे में सीखेंगे, लेकिन अभी भी मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे लिए लेसन ये है कि जैसे शागिर्दों ने बिला चून और शराब अपने आप को नहीं देखा, सिर्फ यीशु की सलीब को, उसके फिदिये को, उसकी कुर्बानी को, उसकी खाली कब्र को लोगों के सामने पेश किया, उसके मुआज़ात को लोगों के सामने पेश किया, लोगों को बताया कि खुदा मोहब्बत है, ये लोगों को बताया कि यीशु मसीह वही है जिसने हमारी खातिर 1 कम 40 कोड़े, कलाम में लिखा है कि पालूस ने 5 बार 1 कम 40 कोड़े खाए, 3 बार उसके पांव जो थे वो काट में ठोके गए, 3 वो बर्दाश्त करता रहा। क्यों? क्योंकि यीशु की मोहब्बत को वो जानता था। वो जानता था कि यीशु मसीह ने फिदिया दिया, वो जानता था कि ये वही यीशु मसीह है जिससे मेरी डायरेक्ट मुलाकात हुई थी। तो आप तो फजल के दौर में रहते हैं, आपको तो खुदा ने अपने लहू से खरीदा है, आपको तो खुदा ने फिदिया दे के अपना मोल दे के आपको खरीदा है। इसलिए जब जब कोई परेशानी हो सिर्फ खुदा को याद रखें, खुदा की इबादत करें, दुआ में वक्त गुजारें।